The Delhi dangle is definitely getting closer, but let's hope it doesn't get as dirtier as it had in 2020. The latest, the Aam Aadmi Party versus Congress fight is getting fiercer, but in the midst of all of that, it's the talk of the India Alliance. Various allies of the India Alliance picking sides, nearly all of them, standing beside Arvind Kejriwal. However, the very nature of where the India Alliance stands was questioned today by Omar Abdullah, saying, wind up the alliance if there's no clarity on opposition unity. The question we asked this evening, is the India Alliance over? कांग्रेस का पूरा एजेंडा इस चुनाव में जीतना नहीं है। आम आदमी पार्टी के वोट काट के भारतीय जनता पार्टी को जिताना उनका एजेंडा है। भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए मुद्दों पर एक शब्द कांग्रेस पार्टी नहीं बोलती, एक शब्द संदीप दीक्षित और अजय माकन नहीं बोलते। क्यों भाई, आखिर ऐसा क्या है? वो तो बीजेपी का मोहरा है। बीजेपी कहती है चेस के अंदर एक कदम चल तो वो एक कदम चलता है, वो कहती है दो कदम चल तो वो दो कदम चलता है। It's a full-blown political war between allies AAP and Congress in the national capital. Pause in Delhi has opened too big a can of worms, which has exposed the divided India bloc. While the Lok Sabha-like alliance eluded, AAP and Congress gloves are now truly off. कांग्रेस का पूरा एजेंडा इस चुनाव में जीतना नहीं है। आम आदमी पार्टी के वोट काट के भारतीय जनता पार्टी को जिताना उनका एजेंडा है। क्या संदीप दीक्षित नई दिल्ली में चुनाव जीतने के लिए लड़ रहे हैं? अलका लांबा कालका जी में चुनाव जीतने के लिए लड़ रही हैं? नहीं, सिर्फ आम आदमी पार्टी के नेताओं को टारगेट करने के लिए और वोटों के अंदर जितना काट सकें वोट काटने के लिए। दिल्ली में वर्तमान जो सरकार है उसके खिलाफ काफ़ी एंटीइनकम्बेंसी है। भारतीय जनता पार्टी उन्हें काम करने नहीं दे रही है। वहाँ के लोग भारतीय जनता पार्टी और आप सरकार की नीतियों से त्रस्त आ चुके हैं और कांग्रेस की ओर काफ़ी उम्मीद और आशा से वो देख रहे हैं। हाल ही में कांग्रेस ने जहाँ पे जो दिल्ली जोड़ो यात्रा निकाली थी, उसको जो लोगों से समर्थन मिला, उसमें जो लोगों का प्रतिसाद मिला, वो अपने आप में बहुत ही एनकरेजिंग है और मुझे विश्वास है कि दिल्ली में कांग्रेस की मदद और कांग्रेस के नेतृत्व में एक नई सरकार हम बनाएंगे। While the Gandhis have so far stayed away from Delhi campaign, senior Congress netas too have abandoned the Delhi unit. Former Maharashtra Chief Minister Prithviraj Chauhan predicted an AAP win in Delhi, but made a U-turn after facing angry attack from own leaders. दिल्ली चुनाव बहुत अहम चुनाव है। मैं समझता हूँ शायद वहाँ केजरीवाल जीत जाएंगे। कांग्रेस भी फ्रे में है, कांग्रेस भी चुनाव लड़ेगी। अच्छा होता अगर कांग्रेस और आपका अगर गठबंधन होता, लेकिन शायद वो नहीं होते दिख रहा है। तो अभी मैं यहाँ बैठ के शायद दिल्ली में क्या हो रहा है उसके बारे में ज्यादा कहना मुश्किल होगा। पृथ्वीराज चौहान जो पूर्व मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के, वो भी कह रहे हैं कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार बनेगी। आप उनसे कहो आके अरविंद केजरीवाल की सीट से टिकट मांग लेना, आ जाए दिल्ली, नहीं दिल्ली से लड़ लें, आ जाए। अगर उनको इतना पसंद है तो आ जाए दिल्ली में लड़ लें। The other India bloc parties are also rallying behind the AAP, snubbing Congress. The party which is in a stronger position to be able to defeat the nefarious manner in which Bharatiya Janata Party functions, where they are anti-constitution, anti-democracy, is the Aam Aadmi Party right now. Aam Aadmi Party and Congress contested together in the Lok Sabha elections. It is unfortunate that at the last minute they could not get into an alliance in Haryana. But keeping that in mind, calling someone anti-national, someone who has gone to jail on frivolous charges of corruption, and having them as your partner in the India Alliance speaks of the, I would say, the dichotomy that prevails in the Congress party. The AAP Congress feud made Jammu and Kashmir Chief Minister Omar Abdullah to see red and quip about folding up the opposition alliance. बदकिस्मती की बात यह है कि क्योंकि इंडिया ब्लॉक की कोई मीटिंग बुलाई नहीं जा रही है, तो इसमें कोई क्लैरिटी नहीं है, ना लीडरशिप को लेके, ना एजेंडा को लेके, ना आगे क्या हम रहेंगे या नहीं रहेंगे इसको लेके। शायद दिल्ली के इंतखाबात हो जाएं, उसके बाद अच्छा ये होगा कि इंडिया ब्लॉक के तमाम जो हिस्सेदार हैं उनको बुलाया जाए और इस पर क्लैरिटी हो। अगर ये सिर्फ पार्लियामेंट इलेक्शंस के लिए था, इसको वाइंड अप करिए। The Congress-AAP war could not have made the BJP happier. हम कांग्रेस मुक्त भारत का प्रण लेके चले हैं। ये तो हम पहले से बता रहे हैं कि इनके दिल कभी नहीं मिले। दिमाग से अपने अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए
ये बहुत बार एक होने की कोशिश करते हैं। Will squabbling AAP and Congress end up helping the BJP in Delhi dangle? Bureau Report, India Today.